بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید اہم خبروں کی جانب۔ تلنگانہ کے ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد میں اسلامک سینٹر کا امیر جماعت اسلامی ہند مولانا سید سعادت اللہ حسینی کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر مولانا نے خطاب کرتے ہوئے ظہیر آباد کی عوام کو مبارکباد پیش کی اور موجودہ حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے اس پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس کے بعد امیر جماعت اسلامی ہند تلنگانہ مولانا حامد محمد خان کا بھی تفصیلی خطاب ہوا۔ اس موقع پر رکن ساز کونسل محمد فرید الدین، محمد امجد حسین پٹیل امیر سنگاریڈی، محمد ناظم الدین غوری امیر مقامی ظہیر آباد اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ ظہیر آباد کے شہریوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سینٹر کو اقامت دین کی عظیم جدوجہد کا مرکز بنائیں، اس جدوجہد کو تیز کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اس کے ذریعے پورے شہر میں ایک بڑی مثبت تبدیلی اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے۔ شہری لوگوں کا اس کے اندر الحمدللہ بہت ہی اہم رول اخلاص کے ساتھ رول رہا ہے۔ عزیزان گرامی، اس موقع پر میں یہ بات ضرور کہوں گا، ہمارے جو سابقوں نے 44 سال پہلے جو خواب دیکھا تھا، جو ویژن سیٹ کیا تھا، آج وہ ویژن لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ جو سابقون اولون نے جو کام کیا ہے وہ بہت بڑے پڑھے لکھے۔ اس اسکول کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں دینی و عصری علوم کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے والے طلباء صرف ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS نہیں بنتے، بلکہ ایک دیندار ڈاکٹر، دیندار انجینئر، ایک دیندار IAS، دیندار IPS بنتے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی کے چیئرمین مولانا رحیم الدین انصاری نے تلنگانہ اردو اکیڈمی کے سال 2021 کی ڈائری کی رسم اجرا انجام دی۔ اس موقع پر سیکریٹری و ڈائریکٹر اردو اکیڈمی محمد غوث محی الدین اسٹاف کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیل بتائی۔ جناب ڈاکٹر رحیم الدین انصاری صاحب نے اس کی رونمائی انجام دی۔ چونکہ یہ ڈیری ہر سال کی طرح ایک اسکیم میں شامل ہے، لیکن اس سال کی ڈیری بڑی منفرد حیثیت کی حامل ہے، جہاں اس ڈیری کے اندر ہم مختلف اقلیتی بہبود کے شعبے اور محکمے کے تمام اسکیمات کا احاطہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم نے اس کے علاوہ مختلف کلچرل اور ثقافتی عناصر کو ہم نے شائع کیا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہر صفحے پر ایک شعر لکھا ہوا ہے، اور یہ وہ منتخبہ اشعار ہیں جس کے پڑھنے والے قاری کو ایک بہت ہی سبق آموز اس کے اندر اس کا موضوع موجود ہے۔ تو ان تمام موضوعات کو نہ صرف ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے، بلکہ یہ دیدہ زیب ڈیری جو گزشتہ سال سے بھی بہتر ہم نے اس سال تیار کی ہے، اور چونکہ دیری اس کی رونمائی کرنے کے اندر کچھ دیر تو ہوئی ہے، ایک آدھ ہفتے کی، لیکن ہم نے اس کو بڑی محنت اور مشقت سے تیار کیا ہے۔ میں اس کی تیاری کرنے کے لیے اور اس کے اندر مدد اور معاونت کرنے کے لیے اکیڈمی کے تمام جو متعلقہ عہدیداران ہیں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں، یہ خواہش کرتا ہوں کہ اردو اکیڈمی کی سن 2021 کی یہ ڈائری ان تمام دانشوروں تک پہنچے، ان تمام حلقہ احباب جو ادیبہ حضرات ہیں ان تک پہنچے۔ لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ پریشان پرائیویٹ اسکول ٹیچرز ہوئے تھے، اور اب بھی پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کو کافی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ ایسے ہی ٹیچرز کی مدد کے لیے آگے آئے ہیں ان کے اسٹوڈنٹس۔ تفصیل کے لیے دیکھیے یہ رپورٹ۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ تقریباً ایک سال سے کورونا کی وبا کی وجہ اسکولز بند ہیں، جس کے باعث بجٹ اسکولز میں خدمات انجام دینے والے اساتذہ کی معیشت انتہائی تشویشناک ہو گئی ہے۔ اساتذہ بے روزگاری، معاشی پسماندگی کی وجہ پیشے مزدوری و دیگر خدمات انجام دینے پر مجبور ہے۔ صورتحال کے پیش نظر سابقہ طلبہ پر مشتمل عثمانیہ یونیورسٹی کالج آف انجینئرنگ 1994 تا 1997 بیچ کے طلبہ نے فیڈ دی نیڈ گروپ کے زیر اہتمام مذکورہ پریشان حال بے روزگار معاشی پسماندہ اور اساتذہ میں 130 راشن کٹس تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہیں مزید تفصیلات بتائیں۔ اب پورے جو ایکس اسٹوڈنٹس ہے یا الومنی ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس، آج ان کے لیے ایک میسیج دینا چاہ رہی ہوں۔
ये कोविड के वजह से अपना इकोनॉमी एकदम ठप हो गया और बाद में रिकवर होने के रास्ते में टीचर्स के लिए तो बहुत मुश्किल हो रही है, क्योंकि स्कूल्स रीओपन नहीं हुए, लेकिन जो टीचर्स बजट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं वो स्कूल मैनेजमेंट्स और टीचर्स के लिए डेली मतलब लाइवलीहुड बहुत मुश्किल हो रहा है। ये मेरे नोटिस में भी आया है और थोड़े टीचर्स, मैंने ये सुना है कि थोड़े टीचर्स फैक्ट्रीज में भी जाके काम कर रहे हैं अपने फैमिलीज़ को देखभाल करने के लिए। ये एकदम दर्दनाक बात है। जो टीचर्स हम सबको पढ़ाए, इतना अच्छी तालीम दिए हम सबको, और वो लोग आज ये हालत से गुज़र रहे हैं, ये सोचने के लिए भी हम सब के लिए बहुत दर्दनाक बात है। ज़रूर अपने स्कूल मैनेजमेंट्स, स्कूल टीचर्स से एक बार बात कीजिए, उनके दुख दर्द समझिए और उनको मिटाने के लिए अपने से जितना भी हो सकता है उतना मदद कीजिए। थैंक यू। आदिलाबाद बस डिपो गैरेज के अहाते में 32वें नेशनल रोड सेफ्टी मंथ के अख्तितामी प्रोग्राम के मौके पर एक तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस तकरीब में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी खुसरू शाह खान CTM हैदराबाद के अलावा ज़िला ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आदिलाबाद के श्रीनिवास ने शिरकत की और मुनक़्क़दा तकरीब से खिताब करते हुए ड्राइवर्स को अपने दिमाग को मुतहरिक रखते हुए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास और मुकम्मल शऊर के साथ सफ़र को राहत बख्श और आसान बनाने में अपना अहम रोल अदा करने को कहा। इस मौके पर मुत्तहिदा आदिलाबाद के सिफर हादसात वाले ड्राइवर्स, यानी जिन्होंने अभी तक कोई हादसात अंजाम नहीं दिए हैं, उनकी शालपोशी और गुलपोशी के ज़रिए तहनीत पेश की गई और नगद रकम के अलावा तौसीफ नामों से भी उन्हें नवाजा गया। ఎంత బాధ అనిపిస్తుందంటే మన భారతదేశం నిన్నటి పేపర్ ప్రకారం మన భారతదేశంలో 1% ప్రపంచంలో ఉన్న వాహనాలలో 1% మన భారతదేశంలో ఉంటే 11% మరణాలు మన భారతదేశంలో జరుగుతున్నాయి. అంటే ఒక గంటకు 17 మంది, రోజుకు 420 మంది, మరి 420 మందే కాకుండా ఇంకో 2000 మంది గాయాలతో బాధపడుతున్నారు. అంటే మనం చూసినట్టయితే ఒక 2500 కుటుంబాలు రోజుకు మన భారతదేశంలో మరి ఈ రోడ్డు యాక్సిడెంట్లకు గురై ఎంతో బాధకు గురవుతున్నారు. रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने आज एनुअल फायरिंग प्रैक्टिस के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। उनके साथ DCP LB नगर भोंगीर, क्राइम एडिशनल DCPs क्राइम ट्रैफिक, CAR TSPA नवीन कुमार शर्मिला, ACPs स्टेशन हाउस ऑफिसर्स रच्चाकुंडा ने फायरिंग प्रैक्टिस की। इस मौके पर महेश भागवत समेत दिगर पुलिस एहलकारों ने AK-47 MP5 ग्लॉक गन के साथ फायरिंग की प्रैक्टिस की। फायरिंग प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जाने पर महेश भागवत ने TSPA का शुक्रिया अदा किया। मैलारजोपल्ली में एक शख्स की हादसाती मौत हुई है, जबकि मुतवफ़्फ़ी के अहलखाना ने इस मौत पर शक ज़ाहिर किया है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। मैलारदेपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद के आदर्श नगर कॉलोनी में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त यू वेंकटेश की हैसियत से की, जबकि अफराद ख़ानदान ने मुतवफ़्फ़ी की मौत पर शुक व शुबे का इजहार किया। इत्तला के साथ ही मैलारदेपल्ली पुलिस ने मुकामी वाक़या पहुँच कर नाश का मुआयना किया और बाद पंचनामा नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाने के मुर्दाखाना मुंतकिल करवाया। ताहम पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। केस के सिलसिले में मुतालिका पुलिस अहदेदार ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। ఈరోజు ఉదయం అందాజ 8 గంటల ప్రాంతంలో ఉడత వెంకటేష్ అని చెప్పేసి 35 సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆదర్శ్ నగర్ కాలనీలో, అతను వాళ్ళ ఇంటి ముందల పడి చనిపోయినాడు అని చెప్పేసి సమాచారం వచ్చింది. ఆ సమాచారం అందిన వెంటనే మేము మా సిబ్బందితో వెళ్ళి ఆదర్శ్ నగర్ వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే
ఉడత వెంకటేష్ అనేటువంటి వ్యక్తి వాళ్ళ ఇంటి ముందరనే కింద పడి చనిపోయినట్టుగా ఉన్నది. దాన్ని వెరిఫై చేస్తే ఈ ఉడత వెంకటేషు, ఈ శ్రీ రాజు అని చెప్పేసి ఇద్దరు రాత్రి ఒక బాటిల్ తెచ్చుకొని, ఫుల్ బాటిల్ తీసుకొచ్చుకొని ఇద్దరు కలిసి తాగినారు. టోటల్గా ఫుల్ బాటిల్ మొత్తం తాగినారు. తాగేసేసిన తర్వాత 10:30, 11 o'clock ప్రాంతంలో రాజు అనే తను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈయన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నుంచి గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కు దిగేసేటువంటి క్రమంలో ఉన్నట్టుంది. కాలు జారి కిందికి పడిపోయినాడు. వాళ్ళ ఇంటి ముందర కొంచెం ఎత్తు ప్రాంతం ఉంది, దాని నుంచి జారి కింద పడి అట్లాగా చనిపోయినట్టుగా కనిపిస్తున్నది. కేసు రిజిస్టర్ చేసేసి ఉస్మానియా హాస్పిటల్కు తరలించిన బాడీని. పోస్ట్ మార్టం అనంతరం చావుకు కారణాలు తెలియవస్తాయి. దర్యాప్తులో అన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. शहर में मौत के गड्ढे बढ़ते ही जा रहे हैं। जी हां, सड़कों पर बने ये बड़े बड़े गड्ढे जान ले रहे हैं। कल रात शहर हैदराबाद के मसरूफ तरीन इलाके इमलीबन बस डिपो के करीब ऐसे ही गड्ढों से बचने के चक्कर में एक्सीडेंट हो गया और 2 नौजवानों की अफसोसनाक मौत हो गई। मीरचौक पुलिस स्टेशन हुदूद के इमलीबन बस स्टेशन के करीब अफसोसनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें लारी ने 2 नौजवानों को रौंद डाला। बताया जाता है कि बाइक सवारों की मौके पर ही मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक महलूकीन का ताल्लुक मूसाराम बाग से बताया गया है। महलूक नौजवान इतवार की रात बाइक पर शादी की तकरीब से अपने मकान वापस लौट रहे थे। इमलीबन बस स्टेशन के करीब गले से बचने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके साथ ही दोनों नौजवान तवाजुन खोकर अचानक सड़क पर गिर पड़े। इस दौरान गुजरती लारी ने दोनों को रौंद डाला, जिसके नतीजे में मौके पर ही वो जाँ बहक हो गए। मजलिसी रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इत्तला के साथ ही फौरी मुकामी वाक़या पहुंचकर नाशों को दवाखाना मुंतकिल करवाया। रुकन असम्बली ने महलूकुन के अफराद खानदान से हमदर्दी का इजहार किया। मीरचौक पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस रजिस्टर्ड करके मसरूफ़ तहकीक़ात है। तेलंगाना के ज़िला जगतियाल में एक कार एक्सीडेंट हो गया है। जानते हैं इस हादसे की तफसील इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के कनाल में कार गिरने से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि एक शख्स महफूज रह गया। तफसीलात के मुताबिक जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले वकील के अरमिंदर राव और बीवी श्रेषा और बेटी श्रेया और बेटे जयंत के साथ मिलकर जगनपल्ली के एक मंदिर के दर्शन के लिए कार में जा रहे थे कि मिडीपल्ली के पास कार केनाल में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में अरमिंदर और इनकी बीवी और बेटी हलाक हो गए, जबकि बेटा जयंत किसी तरह इस हादसे में बच गया। కేంద్రానికి సంబంధించిన ప్రముఖ న్యాయవాది అమరేంద్రరావు మాకు బంధువుడు అవుతారు. వారు ఈరోజు సగ్రవాన్లో జరుగుతున్న జాతరకు కుటుంబ సమేతంగా స్నానం చేసి భగవద్దర్శనానికి వెళ్తున్న సందర్భంలో యాక్సిడెంటల్గా కెనాల్లో కారు పోవడం జరిగింది. కొడుకు భగవంతుని దేవల్ల కిటికీ నుంచి స్విమ్మింగ్ చేసుకుని బయటకు వచ్చాడు. భార్య బిడ్డతోటి కూడా చెప్పారు. బిడ్డ పెళ్లి కూడా తీర్తలే. అధికార యంత్రంగా వెంటనే స్పందించి ఇటు ఎస్ఆర్ఎస్పీ వాళ్ళు, రెవెన్యూ, పోలీస్, ఫైర్ అందరూ కూడా వచ్చారు. కారు బయట తీయడం జరిగింది. కానీ దురదృష్టవశాత్తు 3 కూడా చనిపోయారు. तेलंगाना पुलिस की इमेज खराब करने वाला एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिससे लोगों में खौफ पाया गया। दरअसल तेलंगाना के ज़िला वरंगल में नशे की हालत में एक कांस्टेबल पिस्तौल हवा में लहराते हुए मुकामी लोगों से बातें करता देखा गया। उसके बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। शराब के नशे में पुलिस एहलकारों के वीडियोस देखते ही देखते वायरल हो जाते हैं। इसी कड़ी में एक और वीडियो सामने आया है जो वरंगल का है। तेलंगाना के ज़िले वरंगल में हालात नशे में एक कांस्टेबल ने पिस्तौल के साथ हलचल मचा दी। इतवार की रात ज़िले वरंगल के MGM हॉस्पिटल के करीब इस कांस्टेबल को नशे की हालत में पिस्तौल लिए हुए देखकर मुकामी अफराद ने इस बात की इत्तला पुलिस को कर दी, जिसने इसके पास से पिस्तौल जब्त करते हुए इस कांस्टेबल को मटवाटा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांस्टेबल की शनाख्त 53 साला KV बाला प्रसाद के तौर पर की गई है, जो MGM हॉस्पिटल के प्रिजन स्क्वाड में AR कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने कांस्टेबल के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत एक केस दर्ज किया है। फिर एक मरतबा हैदराबाद में तेंदुए की हलचल बढ़ गई है। अब तेंदुए ने निशाना बनाया है हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर के पालतू जानवरों को। देखते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद और इसके अतराफ के इलाके में जंगली जानवर तेंदुए और दीगर जंगली बिल्लियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अब हैदराबाद के इलाके
राजेंद्र नगर में तेंदुए या जंगली बिल्ली के पालतू जानवर पर हमले की खबर है। आज पीर की सुबह एक गाय पर तेंदुए के हमले की खबर है। शक जाहिर किया गया है कि सुनसान मुकाम पर तेंदुए ने गाय पर हमला किया है। मुकामी अफराद से इत्तला मिलते ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अहदेदार वहां पहुंचे और जांच शुरू कर दी। ख़ास बात है कि शमशाबाद एयरपोर्ट समेत हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में जंगली जानवरों के दाखिले होने की खबरें ज़्यादा देखने और सुनने में आ रही है। कुछ दिन पहले ही शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब एक सीसीटीवी फुटेज में जंगली बिल्ली की तस्वीरें कैद हो गई थी। वहीं राजेंद्र नगर के इलाके में भी तेंदुए के पाए जाने के बाद यहाँ की मुकामी आवाम में खौफ की लहर दौड़ गई थी। बरामद संदल मुबारक सैयद कादर शाह बापू सैलानी अरमानी रहमतुल्लाह अलैह बतारीख 14 फरवरी 2021 शमून पेट वरंगल से आस्ताने आलिया हज़रत कादर शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह बापुर नगर तातिकल तोराय दुर्गम रोड चिन्ना पंडियाल घनपुर तेलंगाना में हुआ। ज़ेर सदारत सज्जादा नशीन हज़रत सैयद मोहम्मद मस्तान वली शाह सैलानी अरमानी हसनी हुसैनी साहब क़िबला सैयद मुदब्बिर ने और सैयद करीम ने BBN चैनल से बात करते हुए तफसील बताई। और उर्स मुबारक मनाने का और उसमें शिरकत करने की सआदत नसीब की। साथ ही साथ तमाम शहरियान वरंगल और जमी उशाक़ बुज़ुर्गान दीन को इस उर्स मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये आपके चैनल के ज़रिए तमाम हज़रात को ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि आज हर साल की तरह इस साल भी अज़ीमुशान पैमाने पर उर्स हज़रत कादर शाह बापू रहमतुल्लाह अलैह का संदल मुबारक यहाँ से निकल चुका है, जो कि दरबार कादर बापू रहमतुल्लाह अलैह में पेश होगा। और कल बतारीख 15 फरवरी 2021 को हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ बैनुल अक़वामी क़व्वाल हज़रात अलहाज हाजी मुकर्रम अली वारसी साहब भोपाल MP और मैनाज शायर व फ़नकार सरफराज अनवर साबरी साहब अपने सूफियाना कलाम कल पेश फरमाएंगे। तमाम हज़रात से मुअद्दिबाना गुजारिश की जाती है कि कसीर तादाद में इसमें शिरकत फरमाकर रूहानी व जिस्मानी फ़यूज़ व बरक़ात हासिल फरमाएँ। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। बेलगाम होती जा रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, फिर 23 पैसे का हुआ इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत हुई 92 रुपये 53 पैसे। आज से फास्टैग के बगैर सफर करना होगा मुश्किल। टोल गेट पर फास्टैग न लगाने पर देना होगा डबल टैक्स। टू व्हीलर पर रहेगा सिर्फ बढ़ते पेट्रोल का बोझ। मेयर बनने के 72 घंटों बाद ही तनाज़े में घिर गई विजया लक्ष्मी। शेखपेट तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी का ट्रांसफर करवाने का ऑर्डर से शुरू हुआ तनाज़ा। तेलंगाना में ग्रेजुएट MLC इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। रामचंद्र राव और गोजुला प्रेमेंदर रेड्डी को बनाया गया पार्टी का उम्मीदवार। हैदराबाद के पुराने शहर में तरक्याती काम जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने दबीरपुरा नाले के कामों का लिया जायजा। मुकामी MLAs और दीगर पार्टी कारकुन थे मौजूद। हैदराबाद में बढ़ते ही जा रहे हैं मौत के गड्ढे। इमलीबन बस डिपो के करीब गड्ढों से बचने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट, 2 नौजवानों की हुई अफसोसनाक मौत। BBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।